So, good morning, class second. So, yesterday I did adjectives with you. Sorry, I did describing words with you. Describing words को जब आप big classes में चले जाओगे, we will also say adjectives. So, for now you have to say we did describing words. What we did? We did describing words. So, we did describing words. I told you what are describing words. We did an exercise on describing words also. Now, there are few exercises in your chapter number 5 which I asked you to leave for a while क्योंकि मेरे को आपको describing words कराने थे और फिर मैं उसके साथ आपको ये exercises करवाऊंगी. ठीक है. Now, let's start with the exercise F of chapter 5. It is page number 33. Okay. So, now, look at the following sentence. Sonu is a lazy boy. Now, who is a lazy? Lazy का मतलब क्या होता है? Someone who doesn't like to work, who always like to rest. जिसको हमेशा कुछ भी काम करना अच्छा नहीं लगता, जो बहुत सुस्ताता है. ठीक है, तो वो लेजी होता है. तो सोनू इज अ लेजी बॉय. नाउ हेयर सोनू एंड बॉय इज अ नेमिंग वर्ड. बोथ आर नेमिंग वर्ड्स एंड लेजी वर्ड इज डिस्क्राइबिंग हाउ सोनू इज. सोनू एक्टिव है कि लेजी है. सो दिस लेजी वर्ड इज डिस्क्राइबिंग सोनू, कि सोनू कैसा है. तो ये कौन सा है? डिस्क्राइबिंग वर्ड. द वर्ड लेजी टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ बॉय सोनू इज. It describes Sonu. It is a describing word. Alright, it is a describing word because it is describing Sonu, that what kind of a boy Sonu is. Now, underline the describing words in the following sentences. Always drink pure water. Now, always drink pure water. कौन सा पानी पीना चाहिए? Pure. Pure मतलब साफ पानी पीना चाहिए. Pure is a describing word. We'll underline it. Sonu's hair is curly. Now, सोनू के हेयर कैसे हैं? What kind of hair सोनू has? He has curly hair. घुंघराले बाल हैं उसके. Curly is a describing word. This word is describing the kind of hair सोनू has. Varanasi is a holy city. Varanasi is a holy city. Now, Varanasi is a कैसा शहर है? Varanasi holy city. So, it is describing about the kind of city Varanasi is. Holy city. ठीक है. नेहरू वॉज अ पॉपुलर लीडर. नेहरू कैसे लीडर थे? नेहरू जी पॉपुलर लीडर थे, मतलब वो बहुत फेमस थे. पॉपुलर, तो पॉपुलर इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल. नाउ व्हाट काइंड ऑफ एनिमल द टाइगर इज? टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल बिकॉज ही लिव्स इन जंगल. सो टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल. तो वाइल्ड इज अ वर्ड विच इज डिस्क्राइबिंग टाइगर. सो दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. प्योर, होली, वाइल्ड, कर्ली एंड पॉपुलर. नाउ दिस विल डू लेटर. पहले में हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की एक्सरसाइजेस करेंगे. डू एंड डज एक डिफरेंट टॉपिक है जो मैं आपके साथ करूंगी, बट आफ्टर आई फिनिश विथ this exercise, describing words exercise. So this G exercise and H exercise, we are going to do this later on because I have to cover a grammar topic of do and does, and then we'll do this exercise. Now let's come to this. Complete the table as shown. ठीक है, ये आपको टेबल कंप्लीट करना है. नाउ फॉर व्हेन यू विल बी इन थर्ड क्लास, देन मैम विल बी टीचिंग यू more about describing words. We're gonna do like in depth what are describing words. All right. So अभी हमको थोड़ा सा करना है ताकि हमको पता चल जाए. All right. So अभी ये क्या है? These are degrees of describing words. ठीक है. Describing words क्या होते हैं? जो डिस्क्राइब करते हैं एक पर्सन को. अब उसकी इंटेंसिटी क्या है डिस्क्राइब करने की, कि हम क्या बोल रहे हैं कि वो कैसा है. ठीक है. सपोज I say that Rahul is the smartest boy of the class. So when I say that Rahul is the smartest boy of the class, that means वो class में से सबसे smart है. He is सबसे smart है class में से. And when I'm say that Rahul is smart, तो मैं बोल रही हूँ Rahul smart है. I'm not comparing Rahul with anyone in this sentence. Rahul is smart. But when I'm saying that Rahul is smartest of all, मतलब वो सबसे smart है. And sometimes if I say Rahul is smarter than निखिल, तो आई एम कंपेयरिंग राहुल एंड निखिल. मैं राहुल और निखिल की तुलना कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ. बट व्हेन आई से दैट राहुल इज द स्मार्टेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, देन आई एम सेइंग कि वो सबसे स्मार्ट है. ठीक है, ही इज सुपीरियर. सो दीज आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ठीक है, जब हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो हम डिग्रीज यूज करते हैं. वील डू दिस लेटर ऑन व्हेन यू विल बी इन थर्ड क्लास. फॉर नाउ ऑनवर्ड्स अभी के लिए हम ये बेसिक करेंगे और कुछ एक वर्ड्स है जो हम कर रहे हैं. नाउ हार्ड. हार्ड का बात क्या है? हार्डर मतलब हार्ड
थोड़ा, हार्डर मतलब थोड़ा ज्यादा, हार्डेस्ट मतलब वेरी हार्ड, ऑलराइट। वाइड, हार्ड मतलब सख्त होता है ना, वाइड मतलब चौड़ा, ठीक है, वाइड रोड, ऑलराइट। वाइड, वाइड, वाइडर मतलब थोड़ी और वाइडेस्ट मतलब बहुत ज्यादा वाइड, बहुत ज्यादा चौड़ी। शार्प मतलब नुकीला, ठीक है, शार्पर मतलब बहुत ज्यादा नुकीला, एंड शार्पेस्ट मतलब बहुत बहुत ज्यादा। लॉन्ग लंबा, लॉन्गर मतलब लंबा थोड़ा और, एंड लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा। हैवी मतलब भारी, ठीक है, हैवियर थोड़ा और भारी, हैवीएस्ट बहुत ज्यादा भारी। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्गर मतलब थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, सबसे स्ट्रॉन्ग। सो हमने यहाँ पे ER लगाया है एंड में, एंड यहाँ पे हमने EST लगाया है। तो थर्ड डिग्री में हम EST लगाते हैं, सेकंड डिग्री में ER लगाते हैं, और फर्स्ट में हम कुछ नहीं लगाते, वर्ड को एज इट इज लिखते हैं, ऑलराइट। नाउ वी यूज दीज ER जब हम दो लोगों का कंपेरिजन करते हैं, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स और टू पीपल और two places, then we use the second degree. When we talk about only one person, all right, then we use these simple describing words. But when we compare two people, then we use these describing words, ठीक है, harder वाले, जब हम दो को compare करते हैं. But when we compare one with every other person, हम एक को सबके साथ compare करते हैं, तब हम third degree के describing words use करते हैं. Use the words from the table above to fill in the blanks. Now, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रीड द सेंटेंस, द टाइगर इज डैश देन द डियर। अब हम टाइगर को डियर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब हम दो लोगों के साथ दो लोगों को कंपेयर कर, वी आर कंपेयरिंग टू एनिमल्स, टाइगर डियर। अब इन वर्ड्स में से कौन सा वर्ड आ सकता है वहां पे? टाइगर डियर से हम अब यूज योर ब्रेन, टाइगर डियर से क्या हो सकता है? इन सब वर्ड्स में से कौन सा? हार्डर नो, वाइडर नो, शार्पर नो, लॉन्गर नो, हैवियर नो, स्ट्रॉन्गर, बिकॉज टाइगर जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डियर से, राइट? तो टाइगर इज स्ट्रॉन्गर देन द डियर. नाउ व्हाई वी हैव यूज्ड ER? Because we are comparing two animals. When we are comparing two animals, then we use this second degree ER words. Brahmaputra is the dash river in India. Now Brahmaputra is the dash river in India. अब हम ब्रह्मपुत्रा को, ब्रह्मपुत्रा is a river, alright, it is a very long river. अब हम ब्रह्मपुत्रा को सारी रिवर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं उन सबके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे थर्ड डिग्री यूज करेंगे. और ब्रह्मपुत्रा क्या है, उसकी एक खासियत है कि ब्रह्मपुत्रा इस बहुत लंबी रिवर है, तो ब्रह्मपुत्रा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. द स्ट्रीट्स ऑफ आवर सिटी आर डैश देन दैट सिटी. नाउ वी आर कंपेयरिंग टू सिटीज. सिटी, एक सिटी को दूसरी सिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं. और सिटी की रोड्स कैसी होती है? रोड्स, चौड़ाई की बात करते हैं हम जब भी रोड्स की बात करते हैं. वाइड, कितनी ब्रॉड है, कितनी वाइड है. तो द स्ट्रीट्स ऑफ आवर सिटी इज वाइडर देन दैट सिटी. वाइडर ER क्यों लगाया हमने? क्योंकि हम दो सिटीज को कंपेयर कर रहे हैं. नाउ द स्वॉर्ड इज शार्पर देन द नाइफ. स्वॉर्ड शार्प होती है, नाइफ भी शार्प होती है, तो हम स्वॉर्ड को नाइफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं. सो हम यहाँ पे ER यूज करेंगे बिकॉज वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स. स्वॉर्ड को नाइफ के साथ. द स्वॉर्ड इज शार्पर देन द नाइफ. अगर यहाँ पे ऐसा होता कि स्वॉर्ड इज और कुछ नहीं होता, स्वॉर्ड इज डैश ऑफ ऑल, तो मतलब स्वॉर्ड इज शार्पेस्ट ऑफ ऑल. हम स्वॉर्ड को सबके साथ कंपेयर करते अगर, तो हम फिर EST लगाते. द कुली कुड नॉट कैरी दी डैश बॉक्स. अब द कुली जो है वो क्या नहीं कैरी कर पाया? सब तो उसने उठा लिया, पर वो सबसे हैवीएस्ट बॉक्स नहीं उठा पाया, ठीक है. ही कुड नॉट कैरी दी हैवीएस्ट बॉक्स, सबसे भारी बॉक्स नहीं उठा पाया, सबसे भारी. तो वी आर कंपेयरिंग वन बॉक्स विद ऑल अदर बॉक्सेस, तो हैवीएस्ट आ जाएगा, EST आएगा. सो दैट्स हाउ यू नीड टू डू दिस. नाउ join the sentences into one as shown below. Now read these sentences first. Sonu is a boy, he is lazy. सोनू इज अ बॉय, सोनू बॉय है और वो लेजी है, ही इज लेजी. दो सेंटेंसेस हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग द टू सेंटेंसेस वी कैन जॉइन द टू सेंटेंसेस एंड मेक वन सेंटेंस. दोनों सेंटेंस क्या बता रहे हैं कि सोनू बॉय है और वो लेजी है, तो हम दोनों को एक ही सेंटेंस में लिख सकते हैं. सोनू इज अ लेजी बॉय, ऑलराइट. इट इज अ बुक, इट हैज स्टोरीज. व्हाट डज दैट मीन? कि ये स्टोरी बुक है, तो इट इज अ स्टोरी बुक. इट इज अ रैट, इट इज स्मॉल, इट इज अ स्मॉल rat. So that's how you need to make one sentence out of two sentences. It is a flower, it is beautiful, it is a beautiful flower. It is a knife, it is very sharp, it is a very sharp knife. So that's how you need to make one sentence out of two sentences. और ये कौन से words हैं? lazy, story, small, beautiful, sharp. These are describing words because these are describing about, lazy is describing about this boy,
स्टोरीज डिस्क्राइबिंग की बुक कौन सी है, स्टोरी बुक है। रैट, स्मॉल डिस्क्राइब कर रहा है कि रैट कैसा है। ब्यूटीफुल डिस्क्राइब कर रहा है फ्लावर कैसा है। एंड शार्प डिस्क्राइब कर रहा है कि नाइफ कैसी है। सो दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। गिव अ डिफरेंट एंडिंग टू द स्टोरी इन 2 sentences। अब हमने स्टोरी पढ़ी थी कौन सी, विच स्टोरी वी रेड स्टोरी अबाउट वर्क हार्ड। नाउ अब आपको इसकी एंडिंग लिखनी है अलग तरीके से। यू नीड टू यूज योर ओन इमेजिनेशन, यू नीड टू राइट अ डिफरेंट एंडिंग टू दिस स्टोरी। आप जो मर्जी उसकी एंड बनाना चाहो, दैट इज योर इमेजिनेशन, दिस इज योर होमवर्क। ऑलराइट, थैंक यू।